سبحان اللہ. شیر سنے کے انتظار شوق ہے مولا کبو آواز دے. انتظار شوق ہے مولا کبو آواز دے. میں پکاروں یا محمد اور تو آواز دے. احتیاط بر کے دامن تھام لیتی ہے میرا. نام بھی لینا چاہوں تو وضو آواز دے. نام بھی لینا چاہوں تو وضو آواز دے. اب آئیے ہندوستان کے عظیم خطیب جن کو پوری دنیا سننا چاہتی ہے, جنہیں پوری دنیا خطیب اہل سنت, مصلح قوم و ملت, ادیب ذی صلاحیت, اسیر کے صبح سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ مدھیہ پردیش کے نام سے پوری دنیا یاد کرتی ہے. محبت کے ساتھ آئیے ایک ہاتھ سرکار تاج الشریعہ کے نام پر اور ایک ہاتھ سرکار بابو حضور کے نام پر. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور نعرے کا جواب دیں. استقبال کریں حضرت علامہ قاری منظر نواز کا. نعرہ تکبیر. اور بیداری کے ساتھ ہمارے علماء بھی, میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی دعاؤں سے نوازیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مشائخ اہل سنت, غریب نواز کانفرنس, حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب کی گفتگو سماعت کریں, اپنی آخرت کے زلفوں کو سنواریں. نہیں اٹھنا پڑے گا. الفاتحہ الی النبی الکریم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. قادری کا قادری کیوں میں اٹھا, قدر اپنی قادری قدرت نما کے واسطے. تراتا احمد رضائے احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. سائے اللہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے, رحم فرما رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. سب تائیں آیا کا دے چین از عدم و عمل, رفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم, صلوا علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شہر میں بیٹھے باوقار علماء ذوی احترام, عزیز بچوں, نوجوان ساتھیوں, ضعیف بچاؤ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. اور سے اعظم بمن بے سر و سامان, مدد قبلہ دین, مدد کعبہ امام, مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ الشفا, خدمت روح پیمبر یک نظر کن سویما. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما, درہائے دستاراز خلیل کرم کشا, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی یہ کلی غوث اعظم. سنیوں یاد رکھتی مناتے رہو, نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو.
सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बाद तौहीद के मतबालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा मदरसा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़मीन के जाने वालों, बाबू हुजूर से बेइंतहा प्यार इश्क करने वालों, आओ हमरा मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सज्जदे अबरार वाक़ियात, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुख अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद तो हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगा कर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर पाक पर एक से बढ़कर एक आलिम दीन यहाँ पर बैठे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीद रज़ा साहब किबला भी बैठे हैं, नकीब सदार बैठे हैं, नकीब सदाबहार भी बैठे हुए हैं, दिगर तमाम उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हैं। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है मसूद भाई ने, मौलाना आदि साहब ने, इन लोगों ने फ़ोन पे बहुत सारी बातें कही है। उन तमाम बातों को तो मैं यहाँ पेश नहीं कर सकता, लेकिन दो चार बातें यहाँ पेश करने की कोशिश करूँगा। जिस दिन हमारे इलाके की आवाम उलमा से प्यार करने लग जाए, जिस दिन इलाके के आवाम उलमा से प्यार करने लग जाए, उनके कुर्ब में जाने लगे, उनसे मोहब्बत करने लगे, उनसे प्यार करने लगे, तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं हर जलसा भी कामयाब होगा और जलसे में आने के बाद उसकी जिंदगी भी संवरती और निखरती नजर आएगी। शर्त है कि उलमा से प्यार करें। आप जलसे में कोई भी खतीब इलाके का तकरीर के लिए बैठे, नकीब साहब आए तो आप आकर बैठने की कोशिश नहीं करते, आप चेहरा देखकर तकरीर सुनते हैं, पगड़ी देखकर तकरीर सुनते हैं, जुब्बा देखकर तकरीर सुनते हैं। आप जब भी तकरीर सुने आप ये सोचें कि बोलने वाला कौन है, ये बाद में देखें, पहले ये देखें ये बोल क्या रहा है। अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में बोल रहा है, गौसे आज़म की उल्फत में बोल रहा है, गरीब नवाज की चाहत में बोल रहा है, आला हजरत के इश्क में बोल रहा है, तो वो इंसान हमारा है, क्योंकि बरेली के ताजदार फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुपे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज है और अल्हम्दुलिल्लाह एक शायर कहता है तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, और काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का, और जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, अरे बंटता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बढ़ता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और क्या एक अना सागर चाहे तो समंदर भी, क्या एक अना सागर चाहे तो समंदर भी पी जाएगा एक पल में कासा मेरे ख्वाजा का। तमाम उलमा किराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। एक बात आप बताएं, रोजाना इलाके में जलसा होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी आते हैं, पीर भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं। हजरत भाईजान लोग ये कहते हैं कि पहले जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती थी। गरीब नवाज तकरीर करते तो 90 लाख काफिर गरीब नवाज को देखा, उनकी जबान की बोली को देखा, उनके किरदार को देखा, उनके अखलाक को देखा, तो 90 लाख काफिर
कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इतना जलसा हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन आवाम सुधरती क्यों नहीं? लोग सुधरते क्यों नहीं? हमारे बेटे नहीं सुधर रहे हैं, हमारे चचा नहीं सुधर रहे हैं, हमारी माएँ नहीं सुधर रही है, हमारे रिश्तेदार नहीं सुधर रहे हैं, हमारा माशरा नहीं सुधर रहा है, हमारी सोसाइटी नहीं सुधर रही है, हमारा कल्चर दिन ब दिन बदलता रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम, जब बारिश होती है, सच बताइएगा, जब बारिश होती है जमीन पर, तो इस जमीन से धान होता है, इसी जमीन से मकई होता है, इसी जमीन के ऊपर जो है नीचे से ऊपर गेहूं होता है। लेकिन वही बारिश अगर पत्थर पर गिरता है, वही बारिश अगर रोड पे गिरता है, तो आप जानते होंगे कि रोड पे बारिश होने के बाद कभी वहां धान नहीं होता है, पत्थर पर उगने के बाद कभी वहां मकई नहीं होता है। वही बारिश जब जमीन पर होती है, तो वो जमीन गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है, और जो है मकई भी दे रही है, लेकिन पत्थर कभी नहीं देते। बिना तस्बीह व तमसील जब मेरे घर से आजाद तकरीर करते थे, गरीब नवाज तकरीर करते थे, तो लोगों का दिल जमीन के मिस्र था, वो सुनते भी थे और उनकी जिंदगी संवरती भी थी। आज लोगों का दिल पत्थर की तरह हो गया है, जब सुनाया जा रहा है वो असर भी नहीं कर रहा है, उनके दिलों में बात भी नहीं। शर्त है, अपने दिल को पत्थर न बनाओ। अगर आप अपने दिल को पत्थर न बनाते, तो जितने लोग यहाँ हैं, इससे 3 गुना लोग मार्केट में है। ये किसका बेटा है, ये किसका भाई है, किसका भतीजा है, किसका भांजा है, किसका नूरे नजर है, किसका लफ्ते जिगर है, ये किसकी जो है आंखों का तारा है। आप कहोगे ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बहन मेरी है, ये माँ मेरी है, ये चाची मेरी है। ऐ मुसलमान, इतने रोजों से जलसा हो रहा है। एक डॉक्टर के पास एक इंसान जाकर पहुंचता है और डॉक्टर आला लगाकर चेक करता है। डॉक्टर ने कहा सुनिए, आपको शुगर की बीमारी हो गई है। डॉक्टर से आप कहते हैं डॉक्टर साहब अब क्या करना होगा? डॉक्टर ने कहा एक काम कीजिए, आज के बाद फीकी चाय आपको पीनी है, शुगर वाली चाय नहीं पी सकते। कहा ठीक है, मैंने बंद कर दिया। उसने कहा जलेबी नहीं खाना है, आपको जो है मिठाई नहीं खानी है, और चीजें नहीं खानी है, जमीन के अंदर से जो उगती है वो आलू नहीं खाना है, ये सारी चीजें आपको छोड़नी है। तो डॉक्टर ने कहा तो आपने आलू भी खाना छोड़ा। डॉक्टर ने कहा तो आपने चाय भी जो है फीकी पीना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा तो